शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। This is the Second War of Independence. This is a war against corruption. This is a war against the corrupt system, a system that has engulfed the government and the politics of the country. This is war for bringing about a change in the system. The bugle has been blown by Jantantra Morcha. Under the leadership of renowned social activist Anna Hazare. In this war, he is accompanied by ex-Indian Army Chief General V.K. Singh and senior journalist Santosh Bhartiya. Anna Hazare and his Jantantra Morcha's nationwide movement has changed the picture of politics in the country. Jantantra Morcha is a nationwide tour starting from Amritsar's Jallianwala Bagh Martyrs Memorial. Ever since, Jantantra Morcha has been getting an overwhelming support from the people all across the country. From wherever Anna and his convoy passes, people gather in large numbers. People are distraught from rampant corruption. They want change, and for that, on Anna's call, they are ready to pay any price. Anna's close aide in this second war of independence, General V.K. Singh, is disappointed with the system. But still, he has hope for bringing about change. It's not too late if the people of the country come together and collectively use their power. They can bring about change. और ये भ्रष्टाचार तब तक नहीं जाएगा जब तक हम इस चीज का निश्चय नहीं करेंगे कि हमने भ्रष्टाचार को भगाना है। और ये निश्चय होना चाहिए कि ना हम करेंगे ना किसी दूसरे को करने देंगे। Anna's second war of independence is for the betterment of India. It is for the bright future of upcoming generations. Every strata of the society is supporting the Jantantra Yatra, irrespective of their caste or religion. To strengthen the aim of Jantantra Morcha, Sufi Saint Jilani is also travelling with Anna Hazare. He appealed to all sects of Muslim society and shrines to raise their voice for the support of Anna Hazare. भारत की धरती पर भारतवासियों को आवाज दी है कि अब इन फिरंगियों को जो हमारे देश में है, हमें अपना कहते हैं, हमें ये बताते हैं कि हम तुम्हारे हैं, हमारा साथ लेकर के कामयाबी की कुर्सी पर विराजमान होते हैं, लेकिन फिर हमारे पर हुकूमत करते हुए हमारे साथ ही भ्रष्टाचार करते हैं। उस भ्रष्टाचार Accompanying Anna in his every step and playing a crucial role in this movement is journalist and editor-in-chief of Hindi, Urdu and English weekly newspaper Chauthi Dunya, Santosh Bhartiya. He is well known for his fearless investigative journalism with social aspects. Today, Santosh Bhartiya is one of the few editors who is not only the important pillar of Hindi journalism in the country, but he is different from paid journalists and media at large. Santosh Bhartiya himself admits that the image of journalism in the country is fading.
So it's the responsibility of Jantantra Morcha to awaken the people about their rights. As a vigilant and intellectual journalist, Santosh Bhartiya is affiliated with this movement for the betterment of the country. 120 करोड़ मुल्क में आज कोई भी ऐसा नहीं है जो लोगों की आवाज उठाए। एक आदमी नहीं है, एक आदमी जो लोगों के दुख दर्द तकलीफ की आवाज उठाए और अपनी जान होने की बात करे। अभी भी अन्ना कहते हैं कि पता नहीं कब मैं होऊंगा रामलीला मैदान और आप होगे सड़क पे तिरंगा झंडा लेकर। इसका मतलब ये है कि अगर ये मुल्क न बदला और इस देश की जनता न खड़ी हुई, आप सोए रहे, तो मैं इस मुल्क के लिए अपने को बलिदान कर दूंगा। Anna Hazare, even at the age of 75 years, is full of enthusiasm throughout the stormy tour of the nation. कि शरीर में प्राण है तब तक अभी लड़ते रहूंगा ये भ्रष्टाचार के विरोध में, पीछे नहीं, चाहे जान में चली जाए परवाह नहीं। अभी तो ये आगाज है, अंजाम तो आने वाला है। अरे कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, फिर जहां बदलने वाला है, फिर जहां बदलने वाला है। He started his yatra from Amritsar and travelled through Raiya, Kapurthala, Jalandhar, इस देश को बदलने के लिए इन्होंने जनतंत्र मोर्चा बनाया है। जनतंत्र मोर्चा Ludhiana, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। Moga, Firozpur, Husainiwala, इस देश का दुर्भाग्य है कि देश को चलाने वाले लोग वो बलिदान की याद भूल गए हैं। अगर उनको याद होती तो इस देश की यह हालत नहीं होने थी। Faridkot, Guniana, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी Bhatinda, Barnala, तो बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। Sangrur, Bhavanigarh, Patiala, Rajpura, जो बोले सो निहाल। Ambala, Yamunanagar, भारत माता की। Kurukshetra, Karnal, मेरा रंग दे बसंती Gharonda, मेरा रंग दे Panipat, चोला, रंग दे Safedon, Zind, Fatehabad, मेरा रंग दे बसंती चोला, Sirsa, Nathusari, दम निकले इस देश के Bhatukalan, इतना अरमान है, दम निकले इस Adampur, खातिर बस इतना अरमान है।
कमाल है, देख के वीरों की कुर्बानी। बाल समंद, अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती हिसार, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती। Tosham, Bhiwani. Anna also went to Charkhi Dadri. Pali Mahendragarh, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले Ateli, अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की Rewari, गई अपनी आन पे, आज उसी को Nu, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, हम मस्तों का टोला मेरा। Sona, and Gurgaon. He received tremendous support wherever he went. Not only did the elders, even small school children took part in this second war of independence. Anna is angry with the current system. 26 जनवरी 1950 में इस देश में जनतंत्र आ गया। जनतंत्र का अर्थ क्या है? जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से चला हुआ तंत्र। फिर जनता का पैसा जहाँ जहाँ खर्चा होता है जनता का सहभाग लेना जरूरी है। देश का प्लानिंग होता है उसमें जनता का सहभाग लेना जरूरी है। कोई कानून करते हैं, कानून बनाते हैं, उसका ड्राफ्ट करने के लिए जनता का सहभाग लेना जरूरी है। नहीं हुआ। He says that India's current party and government system is dominated by caste. राजनीति में बहुत से लोग सत्ता और पैसा इसके पीछे दौड़ रहे हैं। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। समाज उनके सामने रहा नहीं, देश उनके सामने रहा नहीं। बहुत थोड़े लोग हैं उंगली पर गिनने वाले। ऐसे लोग सोचते हैं, अधिकांश लोग सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता। India's parliament has become a gathering of liars, dishonest and criminal-minded people. The country is caught in the swamp of corruption, and the country's pride is at risk. Now the time has come for us to completely change the system. पक्ष और पार्टी समूह को इलेक्शन के लिए परमिशन नहीं, संविधान का समूह को नहीं। तो लोकतांत्रिक गणराज्य जनता ने आप अपना चारित्रशील उम्मीदवार को खड़ा करना, चुनकर भेजना। भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया? समूह अंदर गया। हमारे हाथ में चाबी है सब बदलने की। प्रतिज्ञा करो कि मैं कोई भी पक्ष और पार्टी का भ्रष्टा, गुंडा, व्यभिचारी, लुटारू हो, ऐसे लोगों को वोटिंग नहीं करूंगा, सिर्फ चारित्रशील लोगों को वोटिंग करूंगा। प्रतिज्ञा करो। Anna believes that the candidate that the people will choose will be bound by the limits of the right to recall. If they will not remain dedicated to the public interest, then the public can teach them a lesson by recalling them. When they choose people from amongst themselves on the basis of their own parameters, then they certainly will choose the right people to govern the nation. चारित्रशील लोगों को वोटिंग करके आगे भेजूंगा। जब तक विधानसभा और लोकसभा में चारित्रशील लोग नहीं जाएंगे, तब तक सही परिवर्तन नहीं आएगा।
Santosh Bhartiya, editor-in-chief of Chauthi Duniya newspaper, says that the country's parliament and states assemblies are against the public interest. हर जगह सरकारें जनता के खिलाफ हैं, जनता के हितों के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार ने शिक्षा छीन ली, भ्रष्टाचार ने रोजगार छीन लिए, भ्रष्टाचार ने स्वास्थ्य के लिए मिलने वाली सुविधाएं छीन ली। The country is reeling under scams. Farmers are unhappy and disappointed. ये लोगों की मिल्कियत है, सरकार की मिल्कियत नहीं है। They are fed up with the wrong policies of the government. Farmers are committing suicide. That is why the people of the country need to boycott all such parties. हिंदुस्तान की संसद 120 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद, उस संसद में कौन कौन था? श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्रीमती सुषमा स्वराज, लालू यादव जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह जी, वामपंथी पार्टियों के नेता, दक्षिण की पार्टियों के नेता, कौन नहीं था उस संसद में? एक भी आदमी अनुपस्थित नहीं था। उस संसद की बैठक ने एक लाइन का प्रस्ताव पास किया, क्योंकि संसद को डर हो गया था कि अगर हिंदुस्तान की जनता खड़ी हो गई तो वो इस संसद की ईंट से ईंट बचा देगी। इसलिए उसने लोगों को धोखा देने का फैसला किया। और क्या फैसला किया उसने? उसने एक लाइन का प्रस्ताव पास किया कि हम जन लोकपाल लाएंगे, सारी रात बैठ के। और प्रधानमंत्री ने अन्ना को खत लिखा कि ये प्रस्ताव संसद ने पास किया है, हम बातचीत करके जल्दी से जल्दी जन लोकपाल, सख्त जन लोकपाल लाएंगे। Sufi Saint Jilani says that the responsibility of ensuring the second war of independence of the people lies with the people of the country, and we all are ready to die for the sake of this goal. ये वतन दोस्तों, ये संकल्प लेकर के निकले हैं, वो दिन दूर नहीं है जब अन्ना हजारे की ललकार लोकसभा में गूंजेगी, राज्यसभा में गूंजेगी, विधानसभा में गूंजेगी, विधान परिषद में गूंजेगी, हिंदुस्तान के एक एक घर में गूंजेगी। और ये गूंज भ्रष्टाचारियों के लिए तमाचा बन करके उन्हें वहां से बाहर निकालेगी। Anna says that we all should take the pledge to boycott criminals and the parties giving tickets to those criminals in the next elections. Through the Jantantra Yatra from Punjab to Haryana, Uttar Pradesh to Rajasthan, Uttarakhand to Madhya Pradesh, many other places, Anna pointed out about the rights mentioned in the Indian Constitution and educated the people. It has been said in the Constitution that in a democratic republic, the people should choose whoever they think is fit or qualified or worthy as their candidate and elect that person to the parliament. But in 1952, when the country's first elections were held, they were held on the basis of parties. Whereas in the Constitution, political parties are not mentioned anywhere. At that time itself, political parties in the countries which were not following or abiding by the interpretation of the Constitution should have been dismissed. Because when democracy had been instated, what role do sides or parties have? Mahatma Gandhi also said to the Congress party after establishing democracy that the parties should be abolished. But what happened was the opposite. The 1952 elections were fought under parties, and after fighting the elections, different sides and parties sent their people to the parliament. People from the public did not get represented. Mr. Santosh Bhartiya boldly says that it is disappointing that all the promises of the parliament about the Jan Lokpal bill and issues related to public interests have turned out to be false. और सबने मिलकर के एक प्रस्ताव पास किया, हम जन लोकपाल लाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना ने सरकार से कहा था कि देश की जनता को एक हथियार दो, वैसा ही हथियार जैसा आरटीआई के रूप में दिया है। ये वो हथियार था जन लोकपाल का, आप किसी भी भ्रष्टाचारी को जांच के दायरे में ला सकते थे। लेकिन 2 साल हो गए, किसी ने एक बयान नहीं दिया, वो जन लोकपाल कहाँ है? हमारी लोकसभा हिंदुस्तान की जनता से वायदा करके वायदा तोड़ने वाली, वादा खिलाफी करने वाले लोगों की लोकसभा है।
हर तरफ करप्शन की आग है। अंग्रेज चले गए और गद्दारों के हाथ हिंदुस्तान सौंप गए। आज 60 साल बाद भी हम गुलाम हैं। कैसे मिलेगी आजादी, हर देशभक्त का यही सवाल है। During the Jantantra Yatra, Anna made continuous clarion calls, especially to the youth of the nation. He believes that youth is the power of the nation, even though political parties are sowing seeds of partition politics amongst youngsters to get them on their side. युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। ये युवा शक्ति जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, ये समाज का, इस देश का। But you have seen the youth of the country have now woken up against the corruption. Similarly, the entire country will now wake up against corruption, is what Anna believes. जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, लेकिन उम्र भर दौड़ रहा है, मेरा 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 मेरा। और कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही। मंदिर में रहता हूँ, सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है, कुछ रखा नहीं, लेकिन मैं अनुभव क्या करता हूँ आज, मैं सिर्फ शादी नहीं किया लेकिन मेरा परिवार छूटा नहीं। 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार नहीं करना था, वो छोटा ना करते हुए एक बड़ा परिवार बन गया। हाँ अब मेरी बारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आंखें गाढ़े सच के साथ हूँ खड़ा, मिटने की तैयारी है, अब तो लंबी पारी है, सर पे जोश अब होश का चढ़ा, अब बदले तो युग बदले, अब बदले तो युग बदले, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। ये जनतंत्र क्या है? जनतंत्र 1947 में हमें आजादी मिली, 90 साल लड़े लोग, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की और हमें 1947 में आजादी मिली। आज आजादी के 66 साल बीत गए। प्रश्न है किसको मिली आजादी? क्या मिली आजादी हमें? भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ, गुंडागर्दी कम नहीं हुई, लूट कम नहीं हुआ, दहशतवाद कम नहीं हुआ। इसलिए हम सबको अभी आजादी की दूसरी लड़ाई अभी लड़नी है। अन्ना को सिपाही चाहिए, महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अन्ना को सिपाही चाहिए। ऐसे सिपाही चाहिए अन्ना को जो अपना 1 साल अन्ना को दे सके। धन्य हो उस राले गांव की उस माता की कोख का, जिस कोख से अन्ना हजारे को जन्म दिया। और देहे शिवाय वर मोहे ये, शुभ कर्मण ते कबहू न डरो, जब जाए लड़ो और इस रण में निश्चय कर अपनी जीत करो। जिस दिन आप निश्चय कर लेंगे ये देश दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा। आपके पास वो सब कुछ होगा जो आज नहीं। Kicked off on 30th March 2013, the Jantantra Yatra reached Jhajjar, Rohtak, Gohana and Sonipat on 10th April. It then reached Noida on 11th April. After holding rallies in Bagpat, Loni, on 12th April, Anna and Jantantra Yatra met people in Greater Noida before addressing a huge gathering in Hapur. और जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, उस गांव से तरकारी विदेश में भेजी, कुवैत, मस्कत, दुबई। From 13th to 16th April, Bulandshahr, Khurja, Zevar, and then Aligarh were the next stop of the Jantantra Yatra. After this, Anna toured Aligarh Muslim University, Debai, Anup Shahar, Sambhal,
Saharanpur, Roorkee, Chutmalpur and reached Dehradun. Anna received huge support from people wherever he went. During the Jantantra Yatra, Anna tried to convince people how arrogant our leaders have become after reaching the parliament. नहीं जाएंगे तब तक सही परिवर्तन नहीं आएगा। आज क्या देख रहे हैं? मालिक को बना दिया सेवक और सेवक बन गए मालिक। ये बदलने के लिए हम बाहर पड़ेंगे कि मालिक रहना चाहिए। और जब आदमी उस लंबी यात्रा करने के बाद इंसान बन जाता है तो उसका नाम नेल्सन मंडेला हो जाता है, महात्मा गांधी हो जाता है, अन्ना हजारे हो जाता है। After Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, the caravan of Jantantra Yatra reached to Rajasthan. On the first day of second phase, Yatra reached to Suratgarh, passed through Ganganagar and Hanumangarh. In the scorching heat of month of May, there was huge crowd in the support of Anna. And actually it was not only crowd, basically it was public reaction to the critiques of Anna Hazare. On the next day, Yatra reached to Bikaner, moving through Rajia Sir, Arjan Sir, Lunak Sir and Mahajan. After reaching Bikaner, in his historical address, Anna said that government have to understand that people of India want change. They want Jan Lokpal. और जनता ही कहेगी सरकार को लोकपाल लाओ नहीं तो गिराओ, लाना पड़ेगा। For the next destination, Yatra moved to Nagaur through Karni Mata and Nokha se Balaji. In the Jodhpur, once again, Anna challenged to the Indian government and said, the people of country have now woken up. Through Jodhpur, Bilaga and Jaitaran, Anna reached to Byawar. In the Byawar, the entire city was there to welcome Annaji. Here in the Byawar, it was seen that it was like raining of flowers in the welcome of Annaji. After the night halt, Yatra reached to Rajsamand through Bhilwara. Here in the Bhilwara, during his address, Anna said, From 13th to 24th May, Anna met people of Rishikesh, आज के पल ऐतिहासिक पल है। ऐसा होता है कई बार हजार तीर्थ भी एक फकीर पैदा नहीं कर पाते, लेकिन एक फकीर जहाँ बैठ जाता है वहाँ तीर्थ बन जाता है। सबके अपने अपने मजहब है, धर्म है, संस्थाएं हैं, संप्रदाय हैं। देव पूजा करें चाहिए, वो हमारी सोच को बदलती है, लेकिन आज देश पूजा, देश पहले हो, हम बाद में हो। इस मठ से हिंदुस्तान की तारीख में, इतिहास में एक नया बाब लिखा जाएगा कि गंगा के किनारे बैठकर कल तक जो देश को जात पात धर्म कास्ट में बांटते रहे,
संत इस युग के अन्ना हजारे ने उस जात पात को खत्म करके गंगा के किनारे बैठकर एकता, अखंडता, भाईचारा, देशभक्ति और देश की शक्ति का ये समूह पैदा करके इस हिंदुस्तान को एक नई तारीख दे रहे हैं। ये देश के लिए मैं 1 साल दूंगा, ऐसे हम पूछते हैं, कई लोग हाथ ऊपर करते हैं। छरबा, विकास नगर, दिन लिया है जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए जान भी देंगे। नैनबाग, उस बात को अपने जैसे 20 लोगों को बताएं। नौगांव, सिपाहियों की इसलिए जरूरत है क्योंकि इस देश में नई राजनीति शुरू करनी है। बड़कोट, उत्तरकाशी, नई टिहरी, श्रीनगर, गौचर, समाज की सेवा और देश के सेवा के लिए आपका करणप्रयाग, गोपेश्वर, आपको जन्म में मिलता लेता है, जोशीमठ, बद्रीनाथ, नंदप्रयाग, घाट, ग्वालदम, गरुड़, कौशानी, सोमेश्वर, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल। ध्येय निश्चित होने से मृत्यु हथेली पर होता है। हल्द्वानी and Rudrapur. Anna appealed all the people that he met to serve the country truly. जागो रे एक बार जागो जागो रे, मानवता है खड़ी जहाँ पर, मानवता है खड़ी जहाँ पर, कहता है इतिहास वहाँ पर, कहता है इतिहास वहाँ पर, कर दो बेड़ा पार, जागो जागो रे, जागो रे एक बार, जागो जागो रे। From 5th July to 17th July, Anna met the people of Madhya Pradesh's Rewa, Sidhi, Biohar, Katni, Jabalpur, Sioni, Chindwara, मुल्तानी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को निर्माण करना है। बेतुल,
इटारसी, होशंगाबाद, भोपाल, सागर, टीकमगढ़, दातिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, बियावरा, शाजापुर, उज्जैन, देवास, इंदौर, On July 23rd, once again, Anna moved forward with a caravan of the Jantantra Yatra to spearhead the Second War of Independence. In this row from 23rd July to 2nd August, he visited Muradabad, Rampur, Bareilly, फरुखाबाद, निकले हैं वीर जी, शाहजहानपुर, सीतापुर, हंस हंस के जान लुटाए, गोंदा। जिस दिन मरेंगे तो समाज और देश की सेवा करते करते मरेंगे। जब तक चालीस लोग नहीं जाएंगे तब तक देश में परिवर्तन नहीं आएगा। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने। सुल्तानपुर, आते कुछ नहीं, जाते कुछ नहीं, उम्र भर दौड़ते हैं और हाथ में कुछ नहीं। बदलपुर, जौनपुर, वाराणसी, मैं होगा रामलीला मैदान और आप होंगे तिरंगा लेकर रखते हैं। आजमगढ़, बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। मऊ, and Gazipur. Anna will be on a fast for Atma Shuddhi from the first day of the upcoming winter session of Parliament. 2 साल से हम प्रयास करने के बाद भी सरकार लोकपाल नहीं लाती, इसलिए फिर से एक बार मैं आत्मक्लेश करने के लिए शीतकालीन अधिवेशन जिस दिन शुरू होगा उसी दिन मैं आत्मक्लेश करने के लिए रामलीला मैदान में बैठ गया। He is ready to sacrifice himself to fulfill the dreams of change, a corruption-free nation, the right to recall, and Jan Lokpal for the second war of independence of the country. ना जिंदाबाद होगा ना मुर्दाबाद होगा, ना जिंदाबाद होगा ना मुर्दाबाद होगा। जब जागेगी ये जनता, जब जागेगी ये जनता तब इनकलाब होगा। ना जिंदाबाद होगा ना मुर्दाबाद होगा, ना
ना जिंदाबाद होगा ना मुर्दाबाद होगा। जहाँ फूलों से सैकड़ बच्चे हर दिन भूखे मरते हैं, हर दिन भूखे मरते हैं, हर दिन भूखे मरते हैं। जहाँ गरीबों की आंखों से झरझर आंसू बहते हैं, झरझर आंसू बहते हैं, झरझर आंसू बहते हैं, फिर भी मिलता है आश्वासन, फिर भी मिलता है आश्वासन, यही हमारी नियति है। हाँ। ना जिंदाबाद होगा ना मुर्दाबाद होगा, ना जिंदाबाद होगा ना मुर्दाबाद होगा। जब जागेगी ये जनता, जब जागेगी ये जनता, तब इनकलाब होगा। ना जिंदाबाद होगा ना मुर्दाबाद होगा, ना जिंदाबाद होगा ना मुर्दाबाद होगा।